Okay, so class 12, chemistry unit 7, P block elements will begin. So basically your periodic table will look somewhat like this, and you all knows here the first is S block, then there is D block, then there is P block, और periodic table के नीचे अलग से दिया होता है F block. ओके 11th स्टैंडर्ड में आप S ब्लॉक के बारे में ऑलरेडी बात करके आए हो, राइट और P ब्लॉक जो है उसके दो ग्रुप आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो ऑलरेडी, ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 दैट यू हैव लर्नड इन स्टैंडर्ड 11, राइट. रेस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जैसे कि D ब्लॉक, F ब्लॉक और बाकी बचे P ब्लॉक के ग्रुप जो है ना वो आपको 12th में पढ़ने हैं. ओके चलिए, सो द P ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन P ऑर्बिटल. ओके एक्सेप्शन है यहाँ पे हीलियम, बिकॉज हीलियम एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2. हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन P में नहीं होता है, देन ऑल्सो इट इज P ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज हीलियम के प्रॉपर्टीज जो है दैट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 18. दैट इज वाई हीलियम इज प्लेस्ड इन द P ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट. चलिए, P ब्लॉक कंटेन ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 and their general electronic configuration is ns2np1 to ns2np6. Group 13 has a configuration ns2np1 and group 18 has a configuration of ns2np6. Group 13 and group 14 you have already learned in class 11, while group number 15, 16, 17, 18 you will learn in class 12. Now in the P block you will have the wide varieties of the properties because of various atomic sizes, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity. So they shows wide variety of the property because of all these varying factors, right? And it also contain metals, metalloids and non-metal. P block अकेला ही ऐसा है जिसके अंदर metal, non-metal and metalloid सब है, क्योंकि आप S block की बात करोगे only metals, D block only metals, F block only metals. All the non-metals and metalloids along with some metals lies in this P block. राइट तो इसीलिए P ब्लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. चलिए इसके बाद अब हम डिटेल में बात करेंगे ग्रुप नंबर 15 की, राइट. तो पहले हम ग्रुप नंबर 15 के जनरल कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कुछ कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड देन वी विल लर्न अबाउट द नाइट्रोजन एंड कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस. दिस इज व्हाट वी विल लर्न. ओके चलिए. Okay, so now let's talk about the group 15, that is also called as nitrogen group, and the elements in group 15 are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, जिसको हम याद करते हैं एज अ नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार. नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार एंड दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. और एक और एलिमेंट आपको अब जोड़ना है दैट इज Mc एंड दैट इज मॉस्कोवियम. विच एलिमेंट इज दिस? मॉस्कोवियम, राइट. द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, phosphorus 15, arsenic 33, as antimony 51, bismuth 83 and moscovium is 115, right. And this moscovium has an atomic mass 289. The moscovium has an atomic mass 289 and this moscovium is a synthetic element and जिसका हाफ लाइफ जो है वो बहुत ही कम है. इट इज़ अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, राइट, जिसका हाफ लाइफ बहुत कम है, मतलब बहुत ही जल्दी ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल है, राइट. ओके चलिए, इफ़ यू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, नाइट्रोजन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p3, then phosphorus has the configuration neon 3s2 3p3, right. Then arsenic, argon 3d10 4s2 4p3. Okay, so what is common in all the electronic configuration? If you see this 2s2 2p3, s2p3 is common in all the electronic configuration. s2p3 is common in all the electronic configuration. So we can say this group 15 has the outer electronic configuration ns2np3. What is the outer electronic configuration of the group? It is ns2np3. Outer electronic configuration is what? ns2np3. And you can see p3. P3 is the half filled configuration, and whenever there is half filled configuration it always gives extra stability, right. So this P3 is half filled configuration, it gives extra stability, right. Now let's see one more thing, that in this group number 15 the initial elements are non-metal and as you move down the group metallic character will increase. Why? Because the first two elements nitrogen and phosphorus they are non-metal, then arsenic and antimony these are metals, metalloids. Arsenic and antimony are metalloids and this bismuth and moscovium these two are metal. So in the starting of the group there is non-metal,
right? Then followed by metalloids, and finally you will get the metals, right? So you remember in group 15, nitrogen, phosphorus is non-metal, arsenic, antimony is metalloids, bismuth and moscovium is non-metal. Okay, now let's talk about the occurrence. How and where will you find these elements? First of all, let's see the occurrence of the nitrogen. So if you see the occurrence of the nitrogen, right? So nitrogen N2 के फॉर्म में एयर में होता है 78%, that is what we know. N2 in the molecular form exists in air by 78%. Then which are the minerals of nitrogen? अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा? तो अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन मिलता है in the form of nitrates. Okay, two main, you can say, minerals of the nitrogen are NaNO3, that is sodium nitrate, called as chili saltpeter. Sodium nitrate NaNO3 is called as chili saltpeter, and KNO3. KNO3 is potassium nitrate, which is called as Indian saltpeter, right? And the nitrogen is also essential in the proteins in the plants and animals. When we will learn, we will see proteins are nothing but they are the you can say they are the one kind of amino acids. और प्रोटीन के अंदर अमाइन ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप मतलब NH2, राइट? सो प्रोटीन के अंदर जो है वो नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट है। आगे चलिए, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहाँ से मिलेगा? तो फॉस्फोरस का मेन मिनरल जो है दैट इज एपेटाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। द मिनरल ऑफ द फॉस्फोरस इज एपेटाइट, एंड एपेटाइट इज Ca9PO46 into CaX2. द फॉर्मूला ऑफ एपेटाइट इज Ca9PO46 into CaX2, where this X can be OH or F. अगर यहाँ पे OH है तो उसे कहेंगे हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और अगर यहाँ पे फ्लोरीन है F तो उसे कहेंगे हम फ्लोर एपेटाइट। जैसे कि Ca9PO46 into CaX2, CaF2, राइट? X की जगह मैंने F आयन ले लिया, ओके, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज फ्लोर एपेटाइट, एंड दिस फ्लोर एपेटाइट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ द फॉस्फेट रॉक। दिस इज एन इंपॉर्टेंट MCQ for 1 mark. Floor apatite is a main component of phosphate rock, right? चलिए आगे, this phosphorus is also essential in all the animal and plant matter, right? Then they present in bones also, and also in the living cell. Phosphorus present in bones as well as they present in the living cell, okay, and they are existing as phosphoproteins in milk and egg. In milk and egg, it is presenting in the form of what? Phosphoprotein. Phosphorus exists as phosphoprotein, okay. Then next elements, arsenic, antimony, bismuth, they are in a very trace amount, okay, and they are found in a very trace amount in sulfide ore. They are found in very trace amount in sulfide ore. So this is the occurrence of the group 15 elements. चलिए, इसके बाद आने वाला है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। Okay, so let's talk about some general properties of the group 15 elements. Very first is electronic configuration that we have already discussed. It is NS2, NP3 outermost configuration, and because of this P3, right, P3 is the half filled electronic configuration, and whenever it is half filled or full filled configuration, it always gives extra stability, right? Fine. Second one, atomic or ionic radius. The normal trend is whenever you move down the group, electron enter into the new orbit, and because of that the size will increase. That is a normal trend, right? When you move down the group, atomic radius increases. Same thing will happen with the group 15 also. When you move down the group, the radius will increase. Check it out. From nitrogen to bismuth, radius is increasing. Whether it is atomic radius or ionic radius, both will increase, right? Okay. Now, the important thing you need to remember is the increase of radius from nitrogen to phosphorus is considerable. That means it is significant. मतलब आपको ज़्यादा increase दिखेगा when you go from nitrogen to phosphorus. Check it out. Nitrogen has the atomic radius of 70, while the phosphorus has the atomic radius of 110. Phosphorus has the atomic radius of 110, right? On the other hand, if you move from arsenic to bismuth, there is very small increase in the radius. Check it out. Arsenic has a radius of 121 and bismuth is 148. इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ नहीं है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि यहाँ पे एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, इन सब के अंदर इंटरनल या अंदर के ऑर्बिट में D and F पूरा भरना चालू हो जाएगा। इफ यू विल सी, इन दोनों के अंदर खाली S and P ऑर्बिटल थे, यहाँ पे 3D ऑर्बिटल था, यहाँ पे 4D ऑर्बिटल था, यहाँ पे तो आपके पास 4F भी था और 5D भी था।
तो जब भी अंदर के ऑर्बिट में डी एन एफ ऑर्बिटल बढ़ते हैं ना, तो डी एन एफ ऑर्बिटल जो है उसकी साइज बड़ी होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो जाते हैं, राइट। whenever there is DNF orbital they always reduce the screening effect। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ा लेगा, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट रेडियस जितना बढ़ना चाहिए उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हुआ है। द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन बाई गुड अमाउंट एंड दैट्स वाई द रेडियस विल समवॉट डिक्रीज, इंक्रीज होगा बट इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वेरी नॉर्मल ट्रेंड, वेन एवर यू मूव डाउन द ग्रुप the radius will increase, that means the electron is away from the center, that means it is easy to remove the electron, that means ionization enthalpy will decrease. Same thing will happen, ionization enthalpy decrease down the group. Okay, then there are first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, third ionization enthalpy. So we can say first ionization enthalpy is minimum, second is more than it, third is even more than it. Reason is what? When you remove the first electron, तो जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन होंगे ऑब्वियसली उनके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप आयोनाइजेशन करने वाले हो तो आप खाली इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले हो, प्रोटॉन तो उतने ही रहने हैं सेंटर में। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। दैट मीन्स यू हैव टू गिव मोर एनर्जी टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन, even more energy to remove the third electron, even more to remove the fourth electron, and that is why this consecutive ionization enthalpy is always increase, right? Okay fine, चलिए आगे बढ़ते हैं। They have very high ionization enthalpy compared to group 14, group 15 and group 14 if you compare, then group 14 has a very high ionization enthalpy, sorry group 15 has a very high ionization enthalpy. Why? Because in group 15 there is p3 configuration which is more stable, and the size of the group 15 is also smaller as compared to group 14, right? अगर मैं यहाँ पे दो एलिमेंट लिखूँ बच्चों, that is कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन का आउटर कॉन्फ़िगरेशन होगा p2, नाइट्रोजन का आउटर कॉन्फ़िगरेशन है p3। ओके एंड ऑब्वियसली वी कैन सी देयर इज अ हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा बिकॉज ये स्टेबल है। ओके अगर आप इसको ग्रुप 16 के साथ भी कंपेयर करोगे ना, ऑक्सीजन के साथ भी, ऑक्सीजन एस p4, तो ऑक्सीजन का भी जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला चौथा इलेक्ट्रॉन, वो इजीली निकल जाएगा कंपेयर टू दिस कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, राइट। सो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव द मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इवन वी कैन से वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू ग्रुप 14। दो रीज़न उसका, पहला तो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा उसका रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न है स्मॉलर साइज। ग्रुप 15 जो आप जैसे जैसे आप इधर आगे जाओगे वैसे वैसे साइज़ कम होता जाता है ना, तो इसका साइज़ एक कम है और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, मतलब हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज़ वाई इट हैज़ अ वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट? एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने का एबिलिटी कितना है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लास 11 में पढ़ा था हमने ऐसा, ठीक है। ओके चलिए, जैसे जैसे आप किसी भी ग्रुप में नीचे जाओगे तो क्या होगा बच्चों? साइज बड़ा होता जाएगा। साइज बड़ा होता जाएगा इसका मतलब क्या है? जो बाहर इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर से दूर होते जाएंगे, मतलब सेंटर का इतना ज़्यादा अट्रैक्शन लगता नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी इफ़ यू विल मूव डाउन द ग्रुप। यहाँ भी वही हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑल आर पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मीन्स मोर देन वन एटम विल ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। सेकंड, ओनली नाइट्रोजन इज गैस एंड रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म। द मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। हमने पहले ही देख लिया है कि पहले स्टार्टिंग के दो जो है वो नॉन मेटल थे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। उसके बाद के जो दो थे वो मेटलॉइड थे, दैट इज आर्सेनिक एंड एंटीमनी। और उसके बाद बिस्मथ जो था वो मेटल था। मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ नीचे जाने से। रीजन क्या है उसका? इट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि मेटल का मतलब भी क्या है? मेटल का मतलब है इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव हो जाना चाहिए,
मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आराम से रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होते जा रहा है, मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी और वैसे भी साइज भी बड़ा होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान होता जाएगा मूविंग डाउन द ग्रुप। ओके, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो एटॉमिक मास के साथ बढ़ता है, दैट्स अ कॉमन ट्रेंड। ओके, जितना ज़्यादा एटॉमिक मास होगा उतना ही क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ता जाता है। तो नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट क्या होना है, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट्स अ कॉमन थिंग, राइट। एंड मेल्टिंग पॉइंट का याद रखना है बच्चों आपको। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटम का अरेंजमेंट किस तरह है, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा किसका है, आर्सेनिक का है। किसका सबसे ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, आर्सेनिक का है, राइट। और बाकी सबका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आर्सेनिक से कम रहेगा। Fine. So you just need to remember this melting point is maximum at arsenic. So it will increase from nitrogen to phosphorus to arsenic, and then again decrease from arsenic to antimony to bismuth. Okay, so this is the kind of the curve you are going to get for this melting point. Last one, except nitrogen all shows allotropy. Allotropy means what? Allotropy means existence of more than one physical form. Allotropy is existence of more than one physical form. तो इस ग्रुप में खाली नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब जो है ना वो बहरूपीय है, मतलब उनके पास एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म मिलने वाले हैं। तो allotropy का मतलब होता है मोर देन वन फिजिकल फॉर्म। क्या मतलब है एलोट्रॉपी का, मोर देन वन फिजिकल फॉर्म। ओके, सो दिस इज अबाउट द नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करने वाले हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर का किस तरह से वेरिएशन होने वाला है, राइट, और किस तरह से उसका केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा, हेलोजन से कैसे रिएक्ट करेंगे ये एलिमेंट, दैट इज समथिंग वी विल सी आफ्टर दिस। ओके, चलिए। Okay, so let's talk about the chemical properties. Whenever you talk about the chemical properties, very first thing that comes in your mind is oxidation state. यहाँ भी वही करना है सबसे पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, उसके बाद ट्रेंड देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी में क्या है वो, ठीक है। चलिए, सो वी नोज दैट इन ग्रुप नंबर 15 योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट, NH2 NP3। ओके, सो व्हाट इट कैन डू टू कंप्लीट द ऑक्टेट or to get the stability, what it can do, it can accept 3 electron because P3 है, अगर P6 करा तो पूरा शेल जो है वो भर जाएगा, मतलब it can accept 3 electron. If it accept 3 electron you will get the -3 oxidation state, or it can remove this P3. अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए then you will get the +3 oxidation state, और अगर ये पूरे के पूरे 5 के 5 निकाल दिए then you will get this oxidation state that is +5. So normally this group 15 element will exhibit 3 kind of the oxidation state, -3, +3 and +5. Let's talk about the -3 oxidation state plus. So -3 oxidation state, stability of the -3 will decrease down the group. Why? Because -3 कब आएगा, when it accept 3 electron, and we knows that as you will move down the group, एक्सेप्ट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, डोनेट करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी, राइट, बिकॉज जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ी होती जाएगी, तो न्यूक्लियस बहुत अंदर है तो न्यूक्लियस इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो दैट इज वाई -3 ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। वाई? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड द मेटालिक कैरेक्टर। नीचे जाओगे तो फिर मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, डोनेट करता है, राइट। चलिए, बिस्मथ जो है ना वो टिपिकल मेटल है, बिस्मथ विल नॉट शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एवर। चलिए आगे देखो बच्चों, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप +5 की भी बात करोगे ना तो +5 विल ऑल्सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप। वाई? बिकॉज व्हेन यू गोज डाउन द ग्रुप वी नोज दैट जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे d ऑर्बिटल आएंगे, f ऑर्बिटल आएंगे, और ये d और f का काम क्या है, d और f ऑर्बिटल का काम है स्क्रीनिंग इफेक्ट को पुअर करना। क्या काम है d और f ऑर्बिटल का? d और f ऑर्बिटल का काम है स्क्रीनिंग इफेक्ट को पुअर करना, right? Okay, and when the screening effect become poor then it is very difficult to remove this S2, क्योंकि ये S2 जो है ना बच्चों वो पैर में है and they will become inert and that is also called as inert pair effect. What is it called?
इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या कहते हैं उसको, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से ये S वाले 2 इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो P के 3 इलेक्ट्रॉन को निकालो, S वाले निकलने नहीं है, राइट। एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट मूविंग डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी अनस्टेबल होता जाएगा एंड मेनली यू विल गेट ओनली +3। से +5 डिक्रीज डाउन द ग्रुप due to inert pair effect of NH2 because of what, inert pair effect of NH2, okay। but फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन की ताकत है कि वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को भी निकाल ले, S वाले को भी। वाई? बिकॉज फ्लोरीन इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बिस्मथ खाली जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है ना, बिस्मथ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, राइट, वो जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा ना, देन ओनली यू विल सी दैट BiF5 दैट इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन के सिवाय और किसी की औकात नहीं है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ला सके, इनर्ट पेयर को क्रॉस कर सके, ओके। चलिए, सो दिस ओनली BiF5 विल एग्जिस्ट द +5 स्टेट, ओके। व्हाट अबाउट +3 स्टेबिलिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे अभी हमने बात किया, नीचे जाओगे तो इनर्ट पेयर की वजह से ये 2 तो निकलने नहीं है, तो बच्चे खाली 3 को निकालो, दैट इज +3, तो +3 विल बिकम स्टेबल डाउन द ग्रुप। आगे देखते हैं। नाउ सम एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, -3 +3 एंड +5 जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको देखने मिलेगा। बट नाइट्रोजन कैन ऑल्सो एग्जिबिट +1 +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन। व्हेन नाइट्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स सम कंपाउंड लाइक N2O, NO, NO2। Here the oxidation state of nitrogen is +1, here it is +2, here it is +4, right। So when the nitrogen combine with oxygen you will get this kind of oxidation state also 1, 2 and 4, okay fine। एक बात ध्यान रखना है बच्चों, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म द +5 कंपाउंड विथ हेलोजन। नाइट्रोजन जो है ना वो हेलोजन के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अगर उनको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है ना हेलोजन के साथ तो उसको 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, उसको 5 हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तब जाके वो +5 स्टेट में आएगा। बट नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना, क्या है बच्चों नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन? तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है खाली 2s एंड 2p। नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में खाली 2 ऑर्बिटल है, कौन से, 2s एंड 2p। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि तीसरा ऑर्बिट ही नहीं है भाई। d ऑर्बिटल चालू कहां से होता है? d ऑर्बिटल चालू होता है कहां से? तीसरे से। तीसरे ऑर्बिट में जाके 3s 3p 3d तीनों आता है, दूसरे ऑर्बिट में तो खाली 2s 2p होगा, d तो है नहीं। चलो s में 1 ऑर्बिटल है और p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, तो अगर इसको जुड़ना भी है तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके पास 4 ही ऑर्बिटल अवेलेबल है, राइट। तो अगर 5 हेलोजन आ गए तो 5 के साथ नाइट्रोजन कभी जुड़ नहीं सकता है। सो आई कैन राइट दिस, इट डज नॉट फॉर्म +5 कंपाउंड विथ हेलोजन बिकॉज द d ऑर्बिटल इज अनअवेलेबल, ओके, टू ऑक्यूपाई द 5th इलेक्ट्रॉन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऑक्यूपाई हो जाएंगे, 5वां कहाँ रखेंगे? घर ही नहीं है, तो 4 के साथ ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस विल ऑल्सो सोर्स +1 एंड +4 इन द ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस जो है हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, okay। So in the oxo acids of phosphorus can also exhibit +1 and +4 oxidation states, right। now remember one thing, नाइट्रोजन का अगर ये कोई स्टेट हुआ ना 1, 2 या 4, उसको जब आप एसिडिक मीडियम में लोगे ना, इट विल डिसप्रपोर्शनेट। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब है बच्चों, एक ही कंपाउंड ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होकर ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट घट के रिडक्शन भी होता है, उसे हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन, जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन में सीखा हुआ, राइट। तो देखो बच्चों, ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम +1 to +4 दे ऑल विल डिसप्रपोर्शनेट इन एसिड, ओके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो बच्चों, HNO2। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, गिनो। नाइट्रोजन का कितना होगा? ये O2 मतलब -4, ओके। ये +1 कितना हो गया? -3, तो नाइट्रोजन कितना होगा? +3, ओके। दैट इज नाइट्रस एसिड। नाउ दिस नाइट्रस एसिड व्हेन एडेड इन एसिडिक मीडिया इट विल डिसप्रपोर्शनेट एंड दिस इज +5 स्टेट, राइट, एंड दिस इज -2 स्टेट, सॉरी +2 स्टेट, ओके। ये कितना होगा आपका? यस, इट इज +5 एंड इट इज +2। In HNO3 nitric acid it is +5 and in NO nitric oxide it is +2 state. So check it out. This +3 is converted to +5, there is oxidation, and this +3 is converted to +2, that is reduction. Means this HNO2 is undergoing disproportionation and this reaction is very important for your exam.
Write the disproportionation reaction of HNO2. Very important. HNO2 will disproportion into HNO3 and NO. राइट ओके, इसको बैलेंस करना है, जो आपको खुद करना है, रेडॉक्स के हिसाब से इसको बैलेंस करना. चलिए, सिमिलरली फॉस्फोरस का भी अगर कोई इंटरमीडिएट स्टेट है, अगर फॉस्फोरस का कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट है तो फॉस्फोरस भी डिस्प्रपोर्शनेट होके एक बन जाएगा -3, एक बन जाएगा +5. क्या बन जाएगा? फॉस्फोरस भी डिस्प्रपोर्शनेट होके फॉस्फोरस भी बन जाने वाला है -3 एंड +5, एंड दैट डिस्प्रपोर्शनेशन कैन टेक प्लेस इन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडिया. राइट, चलिए आगे. आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो होना नहीं है उनका, सो दे जनरली हैव +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. They have +3 oxidation state as a stable state, right? And this nitrogen, as we have discussed, nitrogen के पास 4 ही ऑर्बिटल है. So nitrogen has the maximum covalency of 4. Nitrogen has maximum covalency of 4, right? Remember this, इसके बाद के थियरी में भी आएगा. Nitrogen has the maximum covalency of 4 क्योंकि एक ऑर्बिटल S का है और 3 ऑर्बिटल P के है. डी तो है ही नहीं उसके पास, इसीलिए नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है. और बाकी एलिमेंट जो है ग्रुप में, जैसे ही तीसरा ऑर्बिट आ जाएगा, नाउ दे हैव डी ऑर्बिटल अवेलेबल, एफ ऑर्बिटल अवेलेबल, विच दे कैन यूज टू पुट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड. सो दिस एलिमेंट अदर देन नाइट्रोजन इन द ग्रुप कैन हैव द मैक्सिमम कोवेलेंसी अप टू 6. ओके, फॉस्फोरस हैज द मैक्सिमम कोवेलेंसी अप टू 6. जैसे कि फॉस्फोरस एक कंपाउंड बनाता है बच्चों, PF6-. Here phosphorus is combining with 6-fluorine. Phosphorus has a maximum covalency of 6, but nitrogen ऐसा नहीं कर सकता है. नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है क्योंकि उसके पास 4 ही ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल नहीं है. बोलो क्लियर? इतना क्लियर हो गया? इतना ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, so next is anomalous properties of the nitrogen. Okay, so we know that first element of every group has some different property than the other element of the group. Let's see how nitrogen differ than other element of the group. Let's see. First point, why nitrogen has a different property? The reasons are, first is smaller size. Nitrogen is the smallest in the group. Second is high electronegativity. Nitrogen has a very strong ability to attract the electron from the covalent bond, right? Then it has a very high ionization enthalpy. Size छोटा है नाइट्रोजन का, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. And unavailability of d ऑर्बिटल, जो हमने पहले ही कह दिया कि नाइट्रोजन में खाली s and p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल नहीं होता है. So because of this 4 reason, nitrogen shows the anomalous property. Let's see this in detail. सबसे पहला, nitrogen form p-pi multiple bond with itself and also with oxygen and carbon. क्योंकि नाइट्रोजन का आउटर ऑर्बिट कौन सा है? 2p है, राइट? कार्बन का भी आउटर ऑर्बिट होता है 2p. Oxygen also has outer orbit 2p. So this nitrogen can easily combine with carbon and oxygen and form the multiple p-pi bond. Multiple bond का मतलब है first bond तो always sigma बनता है, then the multiple bonds are pi bond. तो nitrogen can form pi bond very easily with the nitrogen, oxygen and carbon. The simple example is nitrogen exists in form of N2 molecule, and in that N2 molecule nitrogen exists as N triple bond N. There is one sigma bond and obviously 2 are going to pi bond. Yes or no? So if you talk about the nitrogen molecule, वहीं पे भी क्या है बच्चों? एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है, and this both pi bonds are p-pi bond. Okay, and this bond is very strong and it has a very high bond enthalpy. अगर इसको तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा. Okay, and this bond enthalpy is 941.4 kilojoule per mole. How much it is? 941.4 kilojoule per mole. This is a very high bond enthalpy. Okay. फाइन. देन व्हाट अबाउट द हैवियर एलिमेंट? इतना तो पता चल गया कि नाइट्रोजन जो है वो आराम से नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के साथ p-pi बॉन्ड बना सकता है. 2p ऑर्बिटल है, छोटी साइज का होगा, अच्छे से ओवरलैप हो जाएगा. इफ यू गो टू द हैवियर एलिमेंट दैट इज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वहां पे इजीली p-pi बॉन्ड नहीं बनता है क्योंकि उनके p ऑर्बिटल बहुत ही बड़े साइज के होंगे, प्रॉपर्ली ओवरलैप नहीं हो पाएंगे. दैट इज व्हाई द हैवियर एलिमेंट्स कैन नॉट फॉर्म द p-pi बॉन्ड. व्हाई? ड्यू टू इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ द लार्ज एंड डिफ्यूज्ड p ऑर्बिटल्स. तो हैवियर एलिमेंट्स cannot form p-pi bond, right? Okay, but this heavier element can easily form the single bond. That is phosphorus can
combined with phosphorus with single bond, arsenic arsenic bond, antimony antimony bond, okay, and the bismuth, bismuth तो मेटल है भाई, तो bismuth जो है वो बाकी bismuth मोलिक्यूल से कैसे कनेक्ट होगा, मेटालिक बॉन्ड से, क्योंकि bismuth खुद कैसा है भाई, मेटल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि क्यों नाइट्रोजन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी फॉस्फोरस से कम है। Catenation means what? Catenation means ability to combine with the same type of atom and form the long chains. कैटेनेशन किसे कहते हैं भाई, तो आपको पता होगा कार्बन हैज द मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ द कैटेनेशन। कार्बन बहुत इजीली कार्बन के साथ कंबाइन होकर बड़े बड़े चेन वाले कंपाउंड बनाता है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, राइट। सिमिलरली नाइट्रोजन जो है ना, उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू फॉस्फोरस। रीजन क्या है, तो नाइट्रोजन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, राइट, ऑब्वियसली नाइट्रोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही बॉन्ड बनाए तो एक ही यूज हुआ है तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही पड़े होंगे, ओके। ऑब्वियसली ये बॉन्ड बहुत छोटी साइज का है, ओके, और बाजू बाजू में दोनों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। देन व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। What will happen, these electrons of nitrogen are going to repel each other and which will make this bond unstable. See, I am not talking about N2 molecule, N2 molecule में तो multiple bond है, पाई बॉन्ड है। इफ आई टॉक अबाउट एन सिंगल बॉन्ड एन, तो वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा है, तो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, राइट। सो दिस एंड सिंगल बॉन्ड एन इज वीकर, व्हाई, एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन हैज अ वीकर कैटेनेशन टेंडेंसी। तो यहाँ पे इसका आप रीजन लिखोगे बच्चों, व्हाई इट इज वीक, तो इसके वीक होने का आप रीजन लिखोगे बच्चों, ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ and large inter-electronic repulsion due to the small bond length and the large inter-electronic repulsion, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, ये वापस से बात आ गई, नाइट्रोजन हैज द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितना है, 4 है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। वापस मैं नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी कर चुका है, लिख देते तो भी यहाँ पे ओनली 2s एंड 2p, देयर इज नो डी ऑर्बिटल, ओके। वन मोर थिंग, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल वाला कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता है। सो नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई, कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड और डी पाई बॉन्ड, बिकॉज नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। बाकी जो हैवियर एलिमेंट है वो डी पाई भी बनाते हैं और डी पाई भी बनाते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है R3P ट्रिपल बॉन्ड हो, ओके, यहाँ पे एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड है और ये जो दूसरा बॉन्ड है ना, दिस सेकंड बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस एंड पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर इसको बड़ा करके दिखाऊं आपको, R3P ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें एक जो बॉन्ड है ना, राइट, इस बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन का यूज हुआ होगा पी पाई ऑर्बिटल एंड फॉस्फोरस का यूज हुआ होगा डी पाई ऑर्बिटल। So this second bond is basically d pi p pi in this p double bond O compound. Same as here also there is p pi d pi bond, right? Because phosphorus के पास d ऑर्बिटल है, वो ये काम कर सकता है, नाइट्रोजन ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, उसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है, okay? Similarly this phosphorus when combined with 3 alkyl molecule, okay, then in that case it also form d pi bond। कौन सा बॉन्ड बनाएगा वो, d pi बॉन्ड बनाएगा। यहाँ भी d pi बॉन्डिंग है, लेट मी राइट इट हियर। कौन सा बॉन्डिंग है यहाँ पे, डी पाई बॉन्डिंग है। यहाँ भी कौन सा बॉन्डिंग है, डी पाई बॉन्डिंग है। और नाइट्रोजन ऐसे कंपाउंड नहीं बना सकता है बिकॉज उसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है, एंड दैट इज हाउ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन, ओके। Okay, so let's talk about how this group 15 elements react with the other elements. Okay, the first let's talk about the reactivity with the hydrogen. So when this group 15 element react with hydrogen, they will form which kind of compound, EH3. They will form which kind of compound, EH3. Well, what is E? E is the element of group 15 that can be nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. They all will form this EH3 type of halide. Second, stability will decrease from NH3 to BiH3. स्टेबिलिटी जो है ना वो डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे नीचे जाओगे। अमोनिया सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बिस्मथ वाला सबसे कम स्टेबल है, और ये आप समझ सकते हो फ्रॉम द बॉन्ड डीएसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी। अमोनिया जो है उसका बॉन्ड एंथैल्पी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी कम होता जाएगा। दिस BiH3 हैज अ मिनिमम बॉन्ड एंथैल्पी, राइट। देन वन मोर थिंग, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर
इंक्रीजिंग फ्रॉम NH3 टू BH3. रीजन इज वेरी सिंपल. अमोनिया तो स्टेबल है मतलब वो इजीली हाइड्रोजन देने वाला नहीं है. बट दिस BiH3 इज अनस्टेबल. दिस BiH3 इज अनस्टेबल. इट कैन इजीली गिव हाइड्रोजन टू रिड्यूस अदर. है कि नहीं? BiH3 कैसा है? अनस्टेबल है. उसमें Bi और H के बीच का बॉन्ड जो है वो वीक है, तो वो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, हाइड्रोजन किसी और को जाके जुड़ जाएगा, मतलब सामने वाले का रिडक्शन हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई BiH3 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल NH3 इज अ वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट. दिस इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. इसको तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करेंगे BiH3 को रिडक्शन करने के लिए. ठीक है, चलिए बेसिसिटी की बात करते हैं. तो अमोनिया इज मैक्सिमम बेसिक, BiH3 इज मिनिमम बेसिक. वाई? वापस वही रीजन. यहाँ पे तो Bi और H के बीच का बॉन्ड वीक है, मतलब यहाँ पे तो ये H डोनेट करने के काबिल है. H डोनेट करने के काबिल है मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर जैसा नेचर होना चाहिए, not basic, right? So ammonia is maximum basic, or you can also say ammonia can very easily accept the proton. Ammonia क्या करेगा? Very easily it can accept the proton. क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसका साइज छोटा है, वो बहुत ही इजीली बाहर से H+ को लाके खींच सकता है अपने पास. तो H+ को जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? बेस होता है. तो अमोनिया इज मैक्सिमम बेसिक, राइट, वाइल BiH3 इज मिनिमम बेसिक. तो ये हो गया अबाउट द हाइड्राइड. चलिए अब बात करते हैं व्हाट हैपन व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन. सो व्हेन ग्रुप 15 एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन यू विल गेट टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, दैट इज E2O3 एंड E2O5. Which two type of oxide you will get? E2O3 and E2O5. Why? Because they have two types of oxidation state as stable. +3 भी होता है, +5 भी होता है. अगर +3 स्टेट वाले ऑक्साइड बनेंगे तो E2O3, +5 वाले बनेंगे तो E2O5. रिमेंबर दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज मोर फॉर द कंपाउंड हैविंग हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. Acidic character is always more for the compound having high oxidation state. So these E2O5s are always more acidic. ये कैसा है बच्चों? आपका मोर एसिडिक है. E2O5 इज मोर एसिडिक बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, यहाँ पे +5 स्टेट है. ओके, चलिए ऑन दी अदर हैंड इफ यू कंपेयर द एसिडिटी ऑफ ऑल द ऑक्साइड्स, तो आपने ऐसा पढ़ा होगा नॉन मेटल का ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है, राइट. तो वी नोज दैट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, तो उसके ऑक्साइड कैसे होंगे? नेचर में एसिडिक होंगे. दिस बोथ आर मेटलॉइड्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, तो उसके ऑक्साइड कैसे होंगे? एम्फोथेरिक. कैसे होंगे उनके ऑक्साइड? एम्फोथेरिक. और बिस्मथ तो मेटल था, तो बिस्मथ का ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक होगा. तो इफ यू टॉक अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर, देन दिस एसिडिक कैरेक्टर विल डिक्रीज फ्रॉम दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड टू बिस्मथ ऑक्साइड. तो ये हो गया बच्चों रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. इसमें से एक मार्क के MCQs पूछे जाएंगे, आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करना पड़ेगा. चलिए लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन. अगेन दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 एंड +5. तो दो टाइप के हैलाइड बनेंगे, EX3 and EX5. Okay, you remember this EX5 are more covalent compound. They are more covalent in nature. EX5 जो है ना halide, they are more covalent in nature. चलिए if you talk about this EX3, जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 15 में सबके EX3 एग्जिस्ट करते हैं, नाइट्रोजन के एग्जिस्ट नहीं करते हैं हैलाइड्स, राइट. सो ऑल EX3 आर स्टेबल एक्सेप्ट NH3. ओके, नाइट्रोजन का खाली एक ही ट्राई हैलाइड जो है वो एक्सिस्ट करता है और स्टेबल है, दैट इज NF3. नाइट्रोजन का खाली कौन सा ट्राई हैलाइड ऐसा है जो एक्सिस्ट करता है? दैट इज NF3, राइट. एंड जितने भी ट्राई हैलाइड है वो सारे के सारे नेचर में कोवलेंट है. खाली BiF3 ऐसा है जो आयोनिक है. ये सारी ऐसी बातें हैं जो MCQ में एक मार्क में आपको बहुत काम आएगा. ओनली BiF3 इज आयोनिक कंपाउंड, अदरवाइज बाकी जितने भी ट्राई हैलाइड बनेंगे दे ऑल आर कोवेलेंट. ओनली दिस BiF3 इज आयोनिक, रेस्ट ऑल आर कोवेलेंट. ओके, और एक बात बच्चों, जो EX5 है ना, EX5 नाइट्रोजन कभी बना ही नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि अगर X5 है मतलब 5 हैलोजन को लाना है, 5 के साथ जुड़ना है, बट नाइट्रोजन के पास तो खाली 4 ही कोवेलेंसी है. नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो नाइट्रोजन कभी EX5 नहीं बनाता है. क्यों? बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल. वो बेचारा चाह के भी 5 के साथ नहीं जुड़ सकता है, d ऑर्बिटल नहीं है. ओके, चलो लास्ट वन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल. हाउ दे विल रिएक्ट विथ मेटल? सो वेरी सिंपल, व्हेन दिस ग्रुप 15 एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल दे विल फॉर्म द बाइनरी कंपाउंड. बाइनरी कंपाउंड मतलब खाली दो ही चीजें होगा उसके अंदर, मेटल एंड दिस कंपाउंड X. X क्या है बच्चों आपका? X जो है वो आपका कोई ना कोई एलिमेंट है आपके ग्रुप नंबर 15 का, और M क्या है? मेटल है. जैसे कि आप ले सकते हो बच्चों CA3N2 कैल्शियम नाइट्राइड,
कैल्शियम नाइट्राइड, या आप ले सकते हो कैल्शियम फॉस्फाइड। तो ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो जहाँ पे मेटल जो है वो ग्रुप 15 के एलिमेंट से जुड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चों आपका पी ब्लॉक एलिमेंट का पहला लेक्चर कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 के जितने भी बेसिक प्रॉपर्टीज थे, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे, बेसिक रिएक्टिविटी थे, वो सारे एक साथ में स्टडी कर लिए। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे तो हम बात करेंगे द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, उसके बाद आएगा कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड देन ग्रुप 16। बड़ा चैप्टर है, आपका साथ सहयोग चाहिए होगा मुझे। ओके, चलिए मिलेंगे वापस नेक्स्ट लेक्चर में।